Hello everyone. So as we have been doing these static GK questions which are very prominent for your CUET paper 3 and your law entrance examinations on every Monday, Wednesday and Friday. So I guess this is the 9th or 10th lecture of the series. I'm hoping that you are watching these series. This series although dwells in around 20 questions in every lecture, but every question I try to explain it into and break it into multiple parts so that the knowledge that you are receiving is of around 50 to 60 odd questions. Focus on these questions, try to solve these questions as and when you watch those videos. Make sure that you are noting down the detailed points that I'm telling you about that question. So without further ado, let us start. Now the first question says, so now this is an assertion reason question. तो देखो क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, हमें ना कई बार assertion और रीजनिंग आ जाती है. बाकी एक चीज़ और सुन लो, if you are preparing for CUET 2026 or 2027 or be it CLAT for 2026 or 2027, you can enroll for our full-fledged foundation courses wherein I am also taking certain subjects. You would get access to top faculties. All your domain subjects would be covered irrespective of the fact whether they are humanities, science or commerce. Thirdly, you get a PYQ question bank so that you can check your progress as if these lectures are helping you or not. The fourth thing not to forget is the one-on-one mentorship that you get from our supremely talented faculty, and then there would be hardcover booklets that would be delivered to your doorstep. You are subscribing to this course. And the sixth very important part is about the Saraswati scholarship. In case you are converting a all India rank below 300 in the CLAT examination, or you are scoring a perfect 100 percentile, your fee would be refunded from our end. Let us start this question. Now what is assertion and reason? देखो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ना तुमको पहले एक फैक्ट कि भाई ये कहानी है और उसके पीछे का रीजन ये है. अब तुम मुझे बताओ क्या इस कहानी का रीजन ये है, क्या ये कहानी सही है या ये कहानी सही है. सो देयर इज एन असर्शन मींस आर्ग्यूमेंट. उसके बाद एक रीजन दे देता है कि क्या उस आर्ग्यूमेंट का यही रीजन है. उस हिसाब से वी हैव टू मार्क आवर आंसर. तो पहला असर्शन पढ़ो, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 वाज सिग्निफिकेंट. एक लाइन दे दी कि भाई जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के हर साल क्या होते थे, एनुअल जनरल मीटिंग. तो कांग्रेस यूज टू मीट एवरी ईयर. कांग्रेस यूज टू मीट एवरी ईयर. यहाँ से जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए. इसके लिए हम फुल फ्लेजेड कोई क्लास कभी ले लेंगे, राइट. तो कांग्रेस के कुछ कुछ सेशंस बहुत फेमस हैं, जैसे 1907 का सूरत स्प्लिट, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो जाएंगे. 1916 बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय मिस्टर गांधी हिमसेल्फ. 1885 कांग्रेस का पहला सेशन था, राइट. कुछ कुछ सेशंस ऑफ कांग्रेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939 व्हेन सुभाष चंद्र बोस क्विटेड कांग्रेस. तो कुछ सेशंस हैं which are very important, but that is something else. We'll cover it in a single video wherein we talk about all the important Congress sessions which are important for your upcoming examination. क्वेश्चन पे वापस आओ. कांग्रेस की मीटिंग हर साल होती थी. लाहौर वाला सेशन इंपॉर्टेंट था या नहीं, सबको पता है. मैं मल्टीपल टाइम्स बताता हूँ कि लाहौर का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि लाहौर वाले सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की. पूर्ण स्वराज, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल. अब तक हम पार्शियल इंडिपेंडेंस की ही बात करते थे. इससे पहले 1929 से पहले तक इंडियंस बात करते थे डोमिनियन स्टेटस की. मतलब ये बोलते थे कि ब्रिटिशर्स कीप ऑन रूलिंग अस, हम पे रूल करते रहिए प्लीज, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर्स हमें देखने दो. एक्सटर्नल मैटर्स के लिए प्लीज यू हैव ऑल द पावर. बट ओनली इन द ईयर 1929 डिड द कांग्रेस आस्क्ड और प्रोटेस्टेड फॉर पूर्ण स्वराज, विच मेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. व्हेन आई से कंप्लीट इंडिपेंडेंस या व्हेन आई से पूर्ण स्वराज, इसका मतलब है अब मुझे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए. द रीजन वाई दिस सेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एंड इट वाज ऑन 26 जनवरी 1930 that we hoisted our national flag. We hoisted our national flag. हमने अपना झंडा फहराया इस सेशन के बाद 1930 में 26 जनवरी को. और जहाँ पे झंडा फहराया था वहाँ रवि नाम का रिवर था जो आज के मॉडर्न डे लाहौर में है. तब क्योंकि लाहौर भी तो इंडिया का पार्ट था ना, तब इंडिया का मैप ऐसा रहा था. अब देखो ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड की. इसीलिए नेहरू जी ने आगे जाके, जब बी आर अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया, तो नेहरू जी ने उनसे बोला 2 महीना वेट कर लो भाई, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बच्चे इस 26 जनवरी का सिग्निफिकेंस समझे और पूर्ण स्वराज के बारे में पढ़े. दैट इज वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया, क्योंकि हमने पहली बार अपना नेशनल फ्लैग होइस्ट कर दिया था रिवर रावी पे इन लाहौर
in the year 1930 and all of this happened because there was a Congress session in 1920. समझ में आया? तो भाई ये बात तो पक्का है कि ये सेशन सिग्निफिकेंट तो था। अब उसका रीजन देखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये चीज़ प्रोक्लेम हुई थी, क्या? सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज, यही तो समझा रहा हूँ तब से। इस चीज़ का रीजन ये है कि नहीं है? तो देखो, बोथ ए एंड आर करेक्ट, सही बात है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही बात है। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए, योर आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये दो लोकेशंस पूछ रहा है कि भाई ये दो लोकेशन बता दो कौन कौन सी हैं। तो हमें तो अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है, तो हम तो अभी सीख जाएंगे ये। जैसे ये पॉइंट नंबर ए है ना, दिस इज योर अमृतसर, दिस इज योर अमृतसर। अच्छा, अमृतसर के बारे में कुछ चीज़ें समझो। अमृतसर से थोड़ा ही इधर आगे बढ़ोगे ना, तो एक शहर पाओगे लाहौर नाम का, विच वेंट टू पाकिस्तान। लाहौर एंड अमृतसर इतने सिमिलर हैं कि इन दोनों को बोलते हैं ट्विन सिटीज़ आज भी, ट्विन सिटीज़, क्योंकि आस ही पास है ना, कल्चर सेम है, बस कंट्री अलग है। तो दिस इज अमृतसर। ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि अमृतसर में ही तो 1919 में राउलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए जलियांवाला बाग हुआ था, है ना? अब देखो, नाउ दिस इज बी। अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक दिस इज वाराणसी, और एग्जाम में हो सकता है वाराणसी ही पूछ दे, लेकिन देखो इसका आंसर है गोरखपुर। इसका आंसर क्या है? गोरखपुर। बोलोगे वाराणसी क्यों बताया? देखो इतना बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप इंडिया के मैप को इतना डिटेल में पढ़ पाएं। गोरखपुर यूपी के लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकता है, इंडिया में इतना रेलेवेंस नहीं रख रहा, बट तो इस लोकेशन में आ रहा है, तो आप ये देखेंगे ऑप्शन किस तरीके के पूछे हैं, क्योंकि बनारस इज ऑल्सो समवेयर अराउंड इट, और बनारस भी एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट प्लेस है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में लखनऊ आएगा, तो लखनऊ इज समवेयर अराउंड है, राइट? अवध में, लखनऊ सेंट्रल यूपी में आता है, तो इट इज़ नॉट लखनऊ। तो अगर देखो वाराणसी क्यों पूछता है, क्योंकि 1916 में अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दी थी इंडिया में। देखो पहले समझो, गांधी जी केम टू इंडिया, मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लेकिन पब्लिक में पहली बार आए थे 1916 में। कब आए थे? जब इनॉग्रेशन कौन कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का? मिस्टर मदन मोहन मालवीय, मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी के इनविटेशन पे गांधी जी बीएचयू पहुंचे थे, इसलिए बनारस बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, इसका आंसर क्या है? गोरखपुर। वाई गोरखपुर? बिकॉज चौरी चौरा। आप मुझे इसकी डेट बताओगे और ईयर बताओगे, मैं ये बता देता हूँ आपको कि चौरी चौरा क्यों हुआ था। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था देश भर में, एवरी वन वॉज वॉन्टिंग लाइक कंप्लीट सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो सेल्फ रूल की बात चल रही थी कि हम अपने आप को खुद से रूल करेंगे, स्वराज जिसको बोलते हैं, स्वराज, अपना खुद का राज। अब स्वराज कब हो सकता है? जब आप बॉयकॉट करो। अरे भाई, जब अंग्रेजों को बॉयकॉट करोगे तभी तो अपनी चीज़ों को ला पाओगे। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट, कि भाई बॉयकॉट करो, जब वहाँ पे चीज़ की कमी होगी तो अपने लोग खुद बनाएंगे, स्वदेशी अपने आप आ जाएगा। अब जब ये ऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था पूरी ताकत के साथ, जिसके लीडर कौन थे? गांधी जी। तो ऐसा माना जाता है कि 22 लोग जाके गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे, और जैसे ही वो आग लगेगी तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिशियल्स। जिस वजह से गांधी जी विल टेक बैक द मूवमेंट। गांधी जी बोलेंगे मुझे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चलाना, तुम सब बहुत हिंसक हो, तुम सब बहुत अग्रेसिव हो, वायलेंट हो, अब चलो वापस, है ना? तो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था, इसीलिए गोरखपुर बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। वहाँ पे एक जगह है चौरी चौरा। चले, चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन सेज, देखिए ये भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है द जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 1919 में। 1900 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, सही बात है। इसके बाद ही तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह तेजी से चालू होंगे, खिलाफत मूवमेंट भी होता है, वो तो टर्किश रीजन से था, बट था तो। अच्छा, इसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद गांधी जी अपना टाइटल केसर ए हिंद भी रिनाउंस कर देंगे, ये उनको अंग्रेज़ों ने दिया था 1915-16 में। अच्छा, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी जो होंगे, वो अपना नाइटहुड, नाइटहुड मतलब जो सर नाम लगता है, सर रविंद्रनाथ टैगोर, नाइटहुड को रिनाउंस कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बाद से हमारे देश को, लोगों को लगा कि यार दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप
सोचो ओपन ओपन फील्ड में आपने बच्चों को, औरतों को, सब पे गोलियां चलवा दी। अच्छा, जिसने गोलियां चलवाई थी उसका नाम था जनरल ओ डायर। जब इसने गोलियां चलवाई थी तो आप शायद सोचते होंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पे एक्शन लिया होगा, पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पे एक्शन ना लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको एक टाइटल दिया लायन ऑफ पंजाब। क्योंकि देखें, ब्रिटेन तो अपने हिसाब से देखेगा ना, ब्रिटेन तो ये सोचेगा कि भाई हमारी वहाँ सल्तनत है, ये हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसने रेबल्स को दबा दिया। मान लीजिए अभी इंडिया में ही कहीं पे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाए, अब ब्रिटिशर्स अगर इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उनके हिसाब से एक्शन लिया। अब गलती ये थी कि ये लोग अनार्म्ड थे, निहत्थे लोग थे और पीसफुली आए थे, तो इन्होंने ना वहाँ पे कोई शोर शराबा भी नहीं किया था, मार तोड़ भी नहीं की थी, उसके बाद भी ओपन फायर चला दिया, तो विच वॉज रॉन्ग, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती। अब रीज़न क्या दिया है? द मैसेकर स्पॉइल्ड द रिलेशंस विद द ब्रिटिश एंड वाज द ओपनिंग ऑफ गांधी जीज कमिटमेंट टू इंडियन नेशनलिज्म। देखो ना, 1919 में ये हो रहा है और 1920-21 के आसपास ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जो भी मैंने आपको बताया। यही तो बोल रहा है कि भाई ये चीज़ हुई जिस वजह से गांधी जी ने नेशनलिज्म के मुद्दे को और आगे बढ़ाया। सही बात है, तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट रीजन फॉर ऑप्शन ए, मींस योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलो गवर्नमेंट के तीन फॉर्म होते हैं, गवर्नमेंट के तीन फॉर्म्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कायदे से तो तमीज़ ये है कि तीनों को अलग अलग रहना चाहिए ताकि प्रॉपर क्या बन सके, चेक एंड बैलेंस, ताकि प्रॉपर क्या बन सके, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। यूएस में ये चीज़ एकदम क्लियर कट डिस्टिंग्विश्ड है, पर यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। इंडिया में कौन सा फॉर्म है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म की खासियत ये होती है कि ये जो एल, ई और जे है, बेसिकली एल और ई, एल है, इसी एल से ई आता है। ई कौन होता है? जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है। वो कौन होते हैं? अलग अलग मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब के नीचे काम करते हैं आईएएस ऑफिसर्स, इनके नीचे सुपर बाबू, देन बाबू। नाउ योर मिनिस्टर इज योर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, बिकॉज हर एक 5 साल में चेंज हो जाएगा, बट ये क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और ये कौन से एग्जीक्यूटिव है? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है। मतलब अगर आपके पिताजी भी सरकारी नौकरी करते हैं तो वो क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। चलो, अब इंडिया में क्या है? जो एग्जीक्यूटिव का बड़ा वाला पार्ट है, मतलब असली ताकत जिसके पास है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के पास, वो हमेशा लेजिस्लेचर से। तभी आप देखोगे मंत्री जी या तो लोकसभा से होते हैं या फिर राज्यसभा से। एंड फॉर यू टू बिकम अ मिनिस्टर इन इंडिया, आपको 6 मंथ्स के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सांसद बनना पड़ता है। मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ से आ रहा है, तो ये किसको जवाबदेह होगा? इसको। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कौन है? मोदी सरकार, यहाँ बनी है ना मोदी सरकार, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। और लेजिस्लेटर कौन है? जो सांसद बैठे हुए हैं। तो अगर अगर आपके पास बहुमत नहीं होगी, इफ़ यू वोंट हैव इनफ वोट्स विद यू, इनफ पीपल विद यू, देन योर गवर्नमेंट विल फॉल। इसको बोलते हैं नो नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, वो हमेशा किसको जवाबदेह है? संसद को, है ना। इसीलिए आप देखें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बजट पास कराया जाता है, तो योर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये हमने कॉपी कहाँ से किया है? ब्रिटेन से। अब क्या ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी? नहीं। क्या इंडिया आज़ादी से पहले रन नहीं होता था? रन होता था। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, इसका मतलब ये थोड़ी उससे पहले कोई कानून नहीं था। अब इससे पहले ब्रिटेन हमें अलग अलग कानूनों से रूल करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 35 में तो हम आज़ाद नहीं हुए हैं, तो ये कहीं से आया है, मतलब ब्रिटेन से आया है, तो हमें ब्रिटेन की इसी चीज़ को कॉपी कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। क्वेश्चन पूछता है इन द डैश the executives were made entirely responsible to the legislature, executives were made responsible to the legislatures। ये कहाँ से कॉपी किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो, ये आप पढ़ भी लोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1935 जो भी है। चलो, अच्छा एक चीज़ और याद रखो, 1937 में इंडिया में पहली बार इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि तब हमने क्या कर रखा था, एक सेंट्रल सरकार नहीं बनाते थे, अलग अलग स्टेट्स में सरकार ही चलती थी। तो 1937 के इलेक्शंस में 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था। कितने प्रोविंसेस में? 11, मतलब मान के चलो कितने स्टेट्स? 11। 11 में से 8 में किसकी सरकार आ गई थी? इंडियन नेशनल। ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये क्या है? कांग्रेस। तो क्या है? कांग्रेस। समझ में आया? चलो, तो पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सब समझा दिया है, तो भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, ये भी, ये भी। चलिए क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कई मरतबे बताया, कई बार बताया है, का कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा
कोई लिखने बैठा होगा, जो लिखने बैठता है उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसको लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब क्योंकि पूर्ण स्वराज वाली बात भी रखनी थी तो 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए 26 जनवरी कहलाता है रिपब्लिक डे, 26 नवंबर कहलाता है लॉ डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए थे क्योंकि असलियत में हेड करना था राजेंद्र प्रसाद जी को, बट राजेंद्र प्रसाद जी बीमार पड़ गए पहले दिन, और जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको बना दिया गया। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट चेयरमैन कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे डिवीजन पार्टीशन से पहले बनी थी तो कुछ लोग चले गए पाकिस्तान, अल्टीमेटली बचे 296। बाकी के जो 93 हैं ये चले गए कहाँ? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। की आज़ादी मिली 1946 में, बन गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 47 में आज़ाद हुए। अब इनको पता थोड़ी था हम पाकिस्तान जाएंगे। समझ में आया? और देखो ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें पहली बार जो इलेक्शन होंगे, इसमें फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन थे 1951-52 में। तो जब 51-52 में पहली बार इलेक्शन होंगे तो 47 से लेके 51-52 तक सरकार कौन चलाएगा? कोई तो चलाएगा। उस टाइम सरकार कौन चलाता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी लोकसभा का। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का काम करने बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद इसके हेड बन जाते थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ मेकर यानी पार्लियामेंट का काम करती थी तो जीवी मावलांकर इसके स्पीकर बन जाते थे। इसीलिए इंडिया के फर्स्ट स्पीकर कौन है? जीवी मावलांकर। समझ में आ रहा है? चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से बहुत कुछ है, बाकी इसको डिटेल में पढ़िएगा। अभी क्वेश्चन पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। हु आल्सो हैपेंड टू बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? हाँ, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? अब देखो, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझाया, अभी तुमको ये बात बताई कि किसी भी कंट्री का अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के बनाएगी। इसकी डिटेलिंग पिछले क्वेश्चन में कर दी है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो 389 मेंबर्स थे जिसमें से इफेक्टिवली 296 बचे थे। अब क्या 296 बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते होंगे? आप प्रैक्टिकली सोचिए, वहाँ पे फिर काम नहीं होगा, फिर बदमाशी होगी। तो इन 296 में से जो 7 होनहार लोग थे वो चूज कर लिए गए और इन्हीं लोगों ने इनके बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब क्योंकि इन्होंने ही असलियत में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया तो ये कहलाई ड्राफ्टिंग कमेटी। प्लीज ये मत समझिएगा ये टाइप कर रहे थे वहां बैठ के, तो इन्होंने ही बेसिकली डिबेट्स हुए बट इन्होंने अल्टीमेटली उसको ड्राफ्ट किया। ठीक, अब देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी में वैसे आपको या तो सातों मेंबर होने चाहिए, बट मान लीजिए नहीं भी याद है तो 2 लोगों का नाम हमेशा याद रखो। एक याद रखो बी एन राव जी का नाम, और एक याद रखो बी आर अम्बेडकर जी का नाम। बी आर अम्बेडकर जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो ड्राफ्ट करने के लिए 7 लोगों की कमेटी बैठी थी, इनका कैप्टन कौन था? बी आर अम्बेडकर जी। अच्छा, एक और इंसान थे बी एन राव, ऑल दो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए, बट अम्बेडकर जी ने कई बार खुद एक्सेप्ट किया था कि बी एन राव इज मच मच इंटेलिजेंट देन मी, बट बी एन राव somehow was not very famous. B.N. Rao was the chief advisor of the Indian Constitution. ठीक है, he was also a member of the drafting committee. इन 7 में एक B.N. राव भी थे। पूछता है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, आंसर इज बी आर अम्बेडकर जी। ये सारे ही मेंबर थे, ये सातों, ये 7 में ही आते हैं। चले, बट हमसे चेयरमैन पूछ दिया। चले देखिए ये सब कौन कौन था। बी एन राव भी थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, मुखर्जी जी थे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज एम्फसाइज्ड बाय गांधी जी फॉर द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज? देखें, अब गांधी जी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, बड़े मजबूत सपोर्टर थे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के। तो गांधी जी ने बोला कि भाई इंडिया जब आज़ाद हो जाएगा तो भाषा कौन सी रखी जाएगी? इन्होंने, ये सब लोगों ने सोचना शुरू किया। तो गांधी जी ने बोला ऐसा करते हैं, हिंदूज के लिए निकाल के लाता हूँ हिंदी और मुस्लिम्स की निकाल के लाता हूँ। अब मैं इन दोनों को जोड़ के एक भाषा बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ हिंदुस्तानी, जो मैं और तुम आम भाषा में बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम उर्दू। अब आपने बहुत फेमस एक चीज़ सुनी होगी, हिंदू एक चीज़ बनाते हैं पितर पक्ष। अब पितर तो एक उर्दू शब्द है बट यूज़ कर रहे हैं कौन? हिंदूज। तो उर्दू और हिंदी बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ होती है नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में। हमें पता भी नहीं होता हम उर्दू यूज़ कर रहे होते हैं, और उर्दू बोलते वक्त लोगों को पता भी नहीं होता वो हिंदी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे पितर, आपको कितना बढ़िया एग्जाम्पल बताया मैंने, पितर।
अब आप अगर आप हिंदू होंगे तो आप देखते होंगे आपके यहाँ एक पितर पक्ष बनाते हैं। पितर पक्ष किसके लिए होता है? अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। अब पितर एक ऐसा शब्द है उर्दू, और यूज़ कहाँ होता है? पूजा में। अब आप खुद सोचिए। तो ये दोनों ना इंटरमिंगल्ड लैंग्वेज थी। तो गांधी जी ने बोला कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज बनाओ, और ना तो वो कट्टर संस्कृत हो, क्योंकि संस्कृत ही तो इसकी मदर लैंग्वेज है हिंदी की, और ना तो वो कट्टर पर्शियन हो, क्योंकि पर्शियन ही तो मदर लैंग्वेज है किसकी? उर्दू की। इन दोनों के बीच की एक लैंग्वेज बनाइए और उसको डेवलप करिए, विच विल बी कॉल्ड एज हिंदुस्तानी लैंग्वेज। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज एम्फेसाइज बाय गांधी जी फॉर द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज? कि भैया हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या बनाइए? हिंदुस्तान। पर कभी बनाया नहीं गया। चले, चलो। इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है यार, ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी। इसके साथ में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी रखी थी। कहा था इसको 15 साल तक रखो, बट आज भी रखी हुई है, चलता आ रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज का अलग डिबेट है, कभी किसी और क्लास में। चलो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड एज अ पॉलिटिकल मेंटर बाय गांधी जी? मतलब गांधी जी के भी कोई गुरु थे, है ना? तो जो गांधी जी के गुरु कौन होंगे, जो गांधी जी को इंडिया लेके आएंगे? तो मान के चलिए ये आपका वर्ल्ड मैप, इधर कहीं पे अफ्रीका। ठीक। सबसे पहले गांधी जी पढ़ने गए कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक, ब्रिटेन से पढ़ाई वढ़ाई कर ली पूरी। अब इनके यहाँ पे एक जानने वाले थे, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने इनको यहाँ बुला लिया, साउथ अफ्रीका में। की लॉ फर्म थी। यहाँ पे काम वाम सीखा, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी किए। उसके बाद 1915 में गांधी जी रवाना हो गए हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में आने के लिए, और हिंदू जैसे गांधी जी अफ्रीका, देखो साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश रूल था, तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी वॉज बिकमिंग वेरी फेमस कि भाई ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। तो यहाँ पे एक लॉयर थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले भी लंदन इंग्लैंड से पढ़े हुए थे। यहाँ पे इनको एक बार गांधी जी मिले थे। गोपाल कृष्ण गोखले का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, एग्जाम में पूछते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब ये जब लंदन में थे ना, तो उन्होंने लंदन में एक इंडिया के लिए ग्रुप बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब इंडिया के समाज के ये सर्वेंट्स हैं हम लोग। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, ये पूछता है एग्जाम में। अच्छा, सच गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी अपना गुरु मानते थे इस टाइम से। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बोला कि यार ये साउथ अफ्रीका छोड़ो, तुम इंडिया चले आओ, और इंडिया में आके इंडिपेंडेंस में लड़ाई लड़ो। 1915 में गांधी जी इंडिया चले आएंगे। अभी बताया 9 जनवरी को क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो बस यही बात है। गोपाल कृष्ण गोखले में याद रखें, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलें आगे। चलो। हु अमंग द फॉलोइंग डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन नॉट रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कर पाना बहुत मुश्किल है, छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, बट फिर भी अब देखिए, मान लीजिए कभी पूछ ले तो आप कर ले जाइएगा, लेकिन एग्जाम में मत डरिए कभी, है ना? मोस्टली कंपटीशन ये नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी औरत थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पार्ट थी, और कहती थी कि भाई हमें औरतों के लिए न्याय चाहिए। ये जो तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो और रिजर्व सीट की, ये मत दो। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? कि भाई जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स को मिला था, 1909 में। ये कहता था कि अगर कोई रीजन है तो वहां से इलेक्शन भी मुस्लिम लड़ेगा, और वोट भी सिर्फ मुस्लिम डालेंगे। अभी भाई क्या बात हुई, है ना? ये क्या बात हुई? वोट तो सब डालेंगे ना। आप ये कर दो कि रिजर्वेशन मुस्लिम के लिए है, कि मुस्लिम बनेगा, लेकिन वोट तो सब डालेंगे, कि फिर तो ये जो नॉन मुस्लिम्स उनकी बात ही नहीं सुनेगा। आप बी आर अम्बेडकर जी के भी थॉट्स पढ़ोगे तो बिफोर 1947 ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। वो कहते थे SC ST के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाओ, लेकिन जब उन्होंने देखा नहीं भाई आज़ादी मिल रही है, हमने देश, हमारा देश एक ही है, तो 1947 तक आते आते उन्होंने अपना स्टांस बदला, और उन्होंने बोला अब देश एक ही है, आप रिजर्वेशन दो, लेकिन मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट में सब नहीं वोट डालेंगे। सीट्स रिजर्व कर सकते हो, वोटर रिजर्व नहीं कर सकते। वोटर जैसे ही रिजर्व करोगे फिर वो मुस्लिम्स के अलावा किसी का काम ही नहीं करेगा। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में कभी किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, तो आंसर इज मुस्लिम्स को मिला। 1919 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एंग्लो इंडियंस को भी मिला, सिख्स को मिला, और विमेन को मिला। SC STs के लिए B R अम्बेडकर जी वांटेड इट, लेकिन गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे, और 1932 में इन्होंने अपनी डिमांड वापस ले ली थी। तो अभी बस याद रखें कि हंसा मेहता नाम की एक मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये कह रही थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, पूरा न्याय चाहिए। क्वेश्चन याद मत करो, थोड़ा सा नाम याद रखो। सीखने वाली चीज़ थी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, समझे? अगर मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता विमेन को तो क्या होता पता है? जैसे मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ से इलेक्शन लड़ती सिर्फ औरतें, वोट डालता कौन? सिर्फ औरतें। तो ये क्या बात है भाई? आप ये फिक्स कर दो, ये क्यों फिक्स कर रहे हो? चलो। बट ऑल ऑफ दिस वाज बीइंग डन बाय ब्रिटिशर्स। आप समझ रहे हैं ब्रिटिशर्स, देखो इंडिया डिवीजन हो रहा है 1947 में, पर उसकी जो बीज है ना वो यहीं बो दिया गया है। एकदम से थोड़ी हो जाएगा डिवीजन। 1909 में एक चिंगारी डाल दी। अब तुम खुद सोचो ना, यहाँ पे अपने आप अगर मान लो आपके एरिया में, आप मान के चलिए लेट्स से इफ आई एम अ मुस्लिम, अब मुझे पता है कि इस लखनऊ में सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे चुनाव, और मुस्लिम ही वोट डालेगा। तो भाई मैं हिंदू का काम नहीं करूंगा ना, अगर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स करने आया हूँ, मुझे तो मुस्लिम्स को खुश रखना है।
वोट भी मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को डालेंगे। तो इसीलिए आप देखो ये अंग्रेजों ने 1909 में ही ला दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और अकल लगाओ, 1906 में पहली बार क्या बनी है, मुस्लिम लीग। तो यहाँ से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी, जिसका रिजल्ट आपको 1947 डिवीजन के फॉर्म में दिखता है। चलो, तो मतलब इससे समझिए कि अंग्रेज एक हमेशा ऊपर कोई फोर्स बैठी होती है जो सारी चीज़ें करा रही होती है। आप जो मीडिया में देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, वो पूरा सच कभी नहीं होता, ये मान के चलिएगा, जब तक आप थोड़ा पढ़ लिख ना जाए। ऊपर से कोई रेगुलेट कर रहा होता है, कोई नैरेटिव चल रहा होता है। अब आप सोचो ना, 1909 में जब ये चीज़ आई होगी तो किसी ने सोचा होगा अंग्रेज ये इस आखिरी में जाके इसको यहाँ यूज़ करेंगे? नहीं। चलो, इसलिए लोग बोलते हैं कि रीजन वाई सम ऑफ द पीपल आर अप्रीहेंसिव ऑफ बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक जो आज हो रहा है वो कल्मिनेट होकर 25 50 60 साल बाद बहुत डेंजरस भी हो सकता है, जैसे 1909 का डिवीजन। चलो, सॉल्व सॉल्व ये भी हो गया, ये पढ़ लीजिएगा प्लीज़ एक बार, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, फाइंड आउट विच ऑफ दीज आइडियाज वर एडवोकेटेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने क्या क्या बोला है? इट शुड बी हिंदुस्तानी विच शुड नीदर बी संस्कृताइज्ड हिंदी नॉर पर्शियन उर्दू बट अ ब्लेंड ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। अभी पढ़ाया कि गांधी जी हिंदुस्तानी लैंग्वेज की बात करते थे, तो ये तो फैक्ट सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इट शुड नॉट एडमिट वर्ड्स फ्रॉम अदर डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब तुम्हें लगता है गांधी जी ने ये बोला होगा किसी और भाषा से कोई शब्द लेंगे ही नहीं? कितना एक्सट्रीम वर्ड है, ऐसा पॉसिबल है? हिंदू उर्दू को मिक्स कर रहे हो, हिंदी उर्दू मिक्स कर रहे हो, और उर्दू खुद ही बहुत नकली नकलची भाषा है। उर्दू में क्या है, हिंदी, टर्किश, अराबिक, ईरानी, सारी ये भाषाओं को जोड़ के उर्दू बनती है। तुम्हें लगता है ये चीज़ अलाउ करेंगे कि बाहर से कोई शब्द नहीं लेंगे? नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगर तुम थोड़ा सा भी स्मार्ट इंटेलिजेंट इंसान हो ना, तो तुम ये ऑप्शन काट दोगे तुरंत, आंसर तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाना था। सेकंड ऑप्शन काटते ही देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है, इट शुड नॉट एडमिट वर्ड्स फ्रॉम अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब सिर्फ हिंदी और उर्दू और कोई वर्ड ही नहीं लो। अगर आदमी इतना एक्सट्रीम होता तो दो को मिक्स क्यों करता? मिक्स कर रहा है तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है। तो सेकंड वाला तो ऑप्शन कटा, आंसर तो यहीं से आ गया, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन देखो, द नेशनल लैंग्वेज मस्ट डेवलप इनटू अ रिच एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द थॉट। सही बात है कि नेशनल लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ते लिखते समझते हो, जैसे जो भाषा मैं आपसे बोल रहा हूँ। इट कुड यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम। सही बात है, हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, हिंदुस्तानी लैंग्वेज उर्दू एंड हिंदी। तो ऑप्शन 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। आप थोड़ा भी स्मार्ट रहेंगे तो आप ये 2 काटते ही सॉल्व कर दोगे। चलो, देखिए अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अब आपसे एक स्टेटमेंट दे दिया, पूछ दिया ये स्टेटमेंट दिया किसने, तो मैं भी छोड़ ही देता, बट अब मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप बस अब भी आए तो आप कर ले जाइएगा। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल, ये पूछता है कि ये कहता है कि भाई माइनॉरिटीज़ को अलग मत बंटने दो, नहीं तो भी वहाँ भी माइनॉरिटी रह जाएंगी। ये बोला है जीबी पंत ने। जीबी पंत के बारे में एक चीज़ याद रखिए, ये उत्तरा नहीं नहीं, ये यूपी के कौन से वे चीफ मिनिस्टर थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। चलिए ठीक है, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ भाई वल्लभ पंत। अब ये क्या है, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड अगेंस्ट इंडिया। देखो, अब जैसे आज तुम नोटिस करते होगे, जो सरकारी विभाग होते हैं ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसमें जो बड़ी पोस्ट होती हैं वो यूपीएससी भरता है, उसके नीचे की फिर स्टेट पीसीएस, उसके नीचे फिर अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो अंग्रेजों के टाइम में जो यूपीएससी वाले पोस्ट होते थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स रखते थे और बाकी के पोस्ट इंडियंस को बांटते थे। तो यही सेम चीज़ हमारी नेवी में भी होती थी। जैसे एयरफोर्स में आपने देखा होगा सीडीएस और एनडीए, जो बच्चे एनडीए सीडीएस निकालते हैं वो हायर रैंक्स पे जाते हैं, बाकी तो सिपाही भर्ती बहुत सारी होती है। तो जो एनडीए सीडीएस वाला क्राउड होता था वो अंग्रेज खुद बन जाते थे, और बाकी क्राउड वो इंडिया से ही भर्ती करते थे, एसआई दरोगा सारे भर्ती होते थे। तो अब हुआ क्या, क्योंकि ये जो म्यूटनी है ये 1946 में हुई है, मतलब अभी हम आज़ाद नहीं हुए। मतलब इंडिया की जो नेवी थी उस टाइम पे 1946 में, वो नेवी किसकी थी, अल्टीमेटली ब्रिटिश की थी। तभी तो उसका नाम देखिए क्या था, रॉयल इंडियन नेवी। ब्रिटिशर्स की थी ना, तो ब्रिटिशर्स रॉयल वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुई तो 1946 में थी, क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं था। क्वेश्चन सॉल्व करना था आपको कुछ सिखा देना इससे। तो देखो होता क्या, 1946 में आज़ादी की बात तो थोड़ी बहुत चलना शुरू हो ही गई थी। तो बॉम्बे में इनकी एक टुकड़ी बैठी हुई थी, जो नेवी वालों की एक टुकड़ी है ना, एक ट्रूप। इन लोगों को खाना वाना खराब देते थे अंग्रेज अधिकारी, अपने पास सारी सुविधा रखते थे, वो आज भी है। अगर आप 2005 की एक पुलिस रिपोर्ट केस पढ़ोगे, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जो बात करता है, वो कहता है अगर पुलिस को 100 रुपीज़ मिलते हैं अपने आप को मेंटेन करने के, तो इसमें से 90 रुपीज़ आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर खर्च होते हैं, और बाकी जितनी फोर्स आप देखते हो नीचे से ऊपर तक, वो ये 10 रुपये में ही रहती है। समझे? मतलब सरकार 100 रुपये अगर दे रही है पुलिस को अपनी मेंटेनेंस में पेट्रोल गाड़ी और अखबार का भत्ता चश्मे का भत्ता सब आ जाएगा, तो 100 रुपये में 90 रुपीज़ कौन रख लेता है? 90 रुपीज़ किस पे खर्च हो जाते हैं? आईपीएस ऑफिसर्स पे। पहले अंग्रेजों के पास पोस्ट होती थी, और ये बाकी सबके लिए पीनट्स तो है ही। तो अब यही सेम चीज़ नेवी में भी होती थी। तो वो अपने लिए रिसोर्सेज रिच रखते थे, और इधर अंडरमाइन हो रही थी। अच्छा, इसमें ना पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, आईपीएस हार्डली कितने होंगे किसी भी जिले में? आईपीएस हार्डली होंगे 30, मान लो 25, लेकिन ये वाला फोर्स बल तो कम से कम 20,000 का होगा, 10,000 का होगा। तो आप खुद ही समझ लीजिए। चलो, इसी वजह से जो नीचे रैंक के लोग थे उन्होंने नेवी में म्यूटनी कर दी, लड़ाई कर दी, कह दी हम आज़ाद हैं, हम तुम्हारे साथ काम वाम नहीं करेंगे। इसीलिए बड़ा फेमस है
1946 में हुआ था, आर्मी ने अंदर ही विद्रोह कर दिया था। लेकिन देखिए, आई हैव डीप फॉर दीज पीपल, बट ये सब चीज़ें 46 में हो रही हैं, 47 में आज़ादी समवेयर नियर, है ना। और उसके बाद फिर ब्रिटिश सस्टेन भी नहीं कर पाते, चलो, तो उन्हें देश छोड़ना ही था एनीवे। तो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट रिवोल्ट हैपेंड इन द ईयर 1946। समझ गए आप? चलिए ये पढ़ लेंगे यहाँ से। और अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हैपेंड इन द ईयर। अब ये देखिए, ये क्या था? जब मोहम्मद अली जिन्ना को 1946 में फील हुआ कि भैया मुझे तो पाकिस्तान मिलने ही नहीं वाला, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हमें आज़ादी दे दो, नहीं तो मैं बना दूंगा डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था मैं अपने लोगों को रोकूंगा नहीं, और अगर वो रोड पे आके मारकाट करेंगे तो फिर मुझसे मत कहना। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब अब सीधा पाकिस्तान चाहिए, चाहे हुक और बाई क्रुक, साम दाम दंडभेद मारपीट कुछ भी करो। जिस वजह से जहाँ पे भी मुस्लिम मेजोरिटी थी वहाँ दंगे होना शुरू हो गए, है ना। तो ये कैलकाटा में आप देखोगे आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो पूरा मुस्लिम मेजोरिटी है। तो यहाँ पे मुस्लिम थे और यहाँ वेस्ट बंगाल में हिंदू वगैरह थे। तो इधर ना बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, टेंस ऑफ थाउजेंड पीपल मर गए, रोडों पे पड़े थे। गांधी जी इसीलिए भाग गए थे तुरंत, कहाँ? कैलकाटा जंक्शन पे बैठ गए। और कैलकाटा में हज़ारों, कम से कम 10-20 हज़ार लोग मारे गए, मारकाट हो गई रोड पे 1-2 दिन के अंदर ही, और दंगे हो गए। इस वजह से इसको बोलते हैं ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, क्योंकि हज़ारों, 10-12 हज़ार आदमी मारा गया। तो ग्रेट, अब ग्रेट उस सेंस में नहीं, लेकिन मतलब इतने ज़्यादा थे। कैलकाटा में हुआ था तो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। अब ये हुआ कब था? अगस्त 1940 था, क्योंकि जिन्ना ने अनाउंस कर दिया था डायरेक्ट एक्शन डे, भैया पाकिस्तान दो, नहीं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट स्टॉप माई पीपल। चलो, चलो ये पढ़ लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। देखिए, मुस्लिम लीग सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल गलत। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप लेक्चर सुनो, आप ऑप्शन से मत डरो, जितना नॉलेज रखोगे ऐसे ही कर लोगे। मैंने अभी तुमको क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, जिसमें 96 मेंबर चले गए थे। अगर वो चले गए थे मतलब मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया में बिलीव कर ही नहीं रही थी। तो अगर ये गलत है तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शंस बचे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसमें वी हैड मल्टीपल पार्टीज, वी हैड मल्टीपल पार्टीज, मैंने अभी आपको मैप भी दिखाया था। तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब एवरीवन हैज द राइट टू वोट। ये देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल, एक मिनट सॉरी, यस। हाँ, तो यहाँ पे ना नॉट एवरीवन हैड दिस वोटिंग राइट, सो दिस विल नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। देखो मेरी बात समझो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसमें दो लोग थे, एक इलेक्टेड थे और एक नॉमिनेटेड थे। अब ये जो नॉमिनेटेड थे इनको किसने भेजा था? राजा महाराजाओं ने, प्रिंसली स्टेट्स ने। और ये जो इलेक्टेड थे ये कहाँ से आ रहे थे? अपनी अपनी लोकल विधानसभा से, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आ रहे थे। तो क्या वोट सारे लोग डाल रहे थे? नहीं, जो एमएलए थे वो वोट डाल रहे थे। नॉट एवरीवन हैड द राइट टू वोट। So this will be correct. No, this will be an incorrect option. This will be a correct option. Which of the following is true? So this is true. False, false, false. ये तो false. 14 questions, I guess. Yes. So that is that. I hope you enjoyed this series wherein we tried talking about almost 40-50 odd concepts. In case you are looking for full-fledged courses just like these, wherein you start from the very basic and go to the very end, please go and install our app. The link is in the description. Secondly, you can directly give us a call on the number given in the description. The number is 8808888415 to enroll in any of these courses. I hope to see you on Wednesday now. I hope you are learning. Keep learning and keep practicing. Thank you so much.